Hello and welcome back to my channel. We are starting a series on meteorology, which is also a part of exam called CPL, organized by DGCA, and it is also a part of NET UGC for Environment and Science. It is also a part for UPSC, and meteorology is really a very interesting subject. You can't say that this lacks logic. You can't say that this can be mugged up. Iski weightage is, I can't tell you in words, but if in GK also, if you have this knowledge, not even in exams, but वैसे भी in general, if you have the knowledge of this exam, चाहे वो CPL हो, चाहे वो SSC के exam हो, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो prelims हो, mains हो, for any of the organization, meteorology is really important. Environment, atmosphere, global climate change, in सब के लिए you need to have information about aviation, meteorology, or meteorology in brief. So this book by I.C. Joshi, who is a group captain, also a retired person, the author of the book has written this beautiful book, a very informative and to the point book for specially aviation meteorology and meteorology in general. Okay, so we'll be studying the index first and we'll see what all chapters are being covered in the book, and all of these chapters are from your CPL exam, from your UGC NET exam, from your environment science exam, and from your UPSC exams. Geography, world geography, all the chapters will be covered. So this will be one religious book will be following throughout the series, and if you have any sort of question regarding any of the topic you didn't understand, you please let me know and I'll clear it all. Achha, let me do this 2-page thing. Yeah, better now. So see, what all we'll be studying in this chapter is, there are 28 chapters in this book called Aviation Meteorology, where the first chapter is atmosphere, followed by atmospheric pressure. इसको हम लोग थोड़ा सा लिखते चलेंगे साथ में. देखो, पहला चैप्टर द मोस्ट बेसिक इज एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर में क्या लेयर्स होती हैं, कितने उसके पार्ट्स होते हैं, कितने किलोमीटर पे वो रेंज करती है. देन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि लैप्स रेट क्या होता है, ALR क्या होता है, डायबिटिक क्या होता है, एडियाबैटिक क्या होते हैं, टेम्परेचर, थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है इसमें, टेम्परेचर क्या होता है, एयर डेंसिटी, ह्यूमिडिटी, विंड्स, विजिबिलिटी एंड फॉग, वर्टिकल मोशन क्लाउड, स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, ऑप्टिकल फिनोमिना, प्रेसिपिटेशन, आइस एक्रीशन, air mass front, western disturbance, jet stream, clear air turbulence, weather radar, station model, and the last few chapters are your aviation weather reports and codes of meteor specie and trend, aviation weather forecast, radar reports, flight forecast. These are the 28 chapters covered in this complete book, which we'll be also covering in our series. So without wasting much time, let's move to the chapter number 1 called atmosphere. Atmosphere, the most basic, if you remember your class 10th science. A very scoring chapter, I would say. Not only just basic, but a very scoring chapter. A very basic chapter. See, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पहले बात. दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. हम इसमें पहले पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर. एटमॉस्फेयर की क्या कॉम्पोजिशन होता है, कितनी गैसेस कितनी मात्रा में अवेलेबल है, उसका स्ट्रक्चर क्या है. एटमॉस्फेयर में वन ऑफ द अर्थ इज एन एनवेलप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस. होमोजीनियस क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइडेड होती हैं. लाइक हेटेरोजीनियस इज अ वर्ड जहाँ पे मिक्सिंग होती है. होमोजीनियस इज एक्सक्लूसिव ऑक्सीजन, एक्सक्लूसिव आर्गन एंड एक्सक्लूसिव योर कार्बन. दीज आर द होमोजीनियस गैसेस. तो इसमें उसको बोलेंगे एयर. एटमॉस्फेयर में होती है एयर, which is a homogeneous mixture of all the gases. Okay, so this is air. Now it surrounds the earth and attracted to
each other by gravity. What are the characteristics of atmosphere? Atmosphere has weight. The most important thing is it has weight in it and hence it exerts pressure. Weight होगा किसी चीज में तो वो pressure exert करेगी ही करेगी. Okay? एंड इट इज कंप्रेसिबल. इसको आप जैसे नाइट्रोजन गैस हो गई, आपकी हीलियम गैस हो गई, हाइड्रोजन हो गई, इतनी सारी हो तो उनको आप कंप्रेस करके एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में लाके रख सकते हैं. सो दिस इज योर कंप्रेसिबल. इट इज एक्सपैंडेबल. उसको जिस लेवल पे आप कंप्रेस करेंगे, जैसे सीएनजी ले लो, वो उसी लेवल पे एक्सपैंड होगी एंड इट कैन गो इनटू द एयर और एटमॉस्फेयर. इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज नो डेफिनेट शेप. ऑब्वियसली अगर कंप्रेसिबल है तो वो शेप नहीं है, वो कोई भी लेवल पे फॉर्म कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है. कमिंग बैक टू द कॉम्पोजिशन, एयर में किस चीज की कॉम्पोजिशन कितनी होती है? क्या इसमें नाइट्रोजन होता है? क्या इसमें कार्बन होता है? क्या इसमें O3 ओजोन होता है? और क्या इसमें अदर गैसेस लाइक मीथेन होती हैं या नहीं? नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे. नाइट्रोजन होता है, कार्बन, आपका ओजोन और आपका CH4 इज मीथेन. ये होते हैं या नहीं? अगर होते हैं तो कितनी मात्रा में है? सो नाइट्रोजन इज योर 78%, ऑक्सीजन इज 20.95%, 20% ऑफ परसेंटेज इज ऑफ ऑक्सीजन, आर्गन इज योर 0.93 एंड CO2 इज 0.035. जस्ट दिस मच, 0.035% ऑफ कार्बन. बस इतना है. अगर 100% एटमॉस्फेयर में एयर है, उसमें से नाइट्रोजन, कार्बन, हीलियम एंड योर मीथेन, दीज आर द गैसेस. उसमें सबसे कम आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है 0.035, जिसको हम सीक्वेस्टर करते हैं. अब सोचो कि ये गैसेस किस मात्रा में अवेलेबल हैं और हम सिर्फ कार्बन पे डिपेंडेंट हैं और उसे ब्लेम कर रहे हैं. अब इससे एक चीज क्या पता चलती है कि आपने जो आपका नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन है, N/O का रेशियो इज 4:1. मतलब जो 100 में से 9:4:1 है, जैसे नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन, वो 4:1 है. मतलब 99 और 1%. और जो आर्गन है वो पॉइंट्स में है, कार्बन पॉइंट्स में है. तो इससे क्या बोलोगे ना, और ये बाय वॉल्यूम, और N/C को आप बोलोगे 1:3 बाय वेट. ये दो टॉपिक हैं, एक वॉल्यूम एक वेट. ठीक है. होमोस्फेयर, एटमॉस्फेयर. होमोस्फेयर क्या होता है? हेटेरोस्फेयर क्या होता है? ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन. इसमें क्या हो गया ना, H2O, नॉक्स और आपकी आ गई सॉक्स. 3 गैसेस हैं सबसे प्रोमिनेंट, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सॉक्स दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड. सिर्फ ये 3 आपके वो हैं. Very small in quantity, water vapor, CO2 and your argon is very small, like in points and fractions of second. 1% भी complete नहीं है. Okay, so dry air and saturated air में है. Water in the atmosphere can exist in 3 states, which is your solid, liquid and gas, which is very common and you've been studying this since your school time. Okay, so the concentration of water vapor rapidly decreases with height. Like जितना वो increase होगा उतना ही वो decrease होगा, directly proportional. So water vapor can be as much as 4% in the tropics, 4% in the tropics, 79% in the sea level. Okay. अब पता है पहली लेयर सबसे बड़ा इसमें लूप होल क्या है ना एटमॉस्फेयर चैप्टर में, कि आपको उसकी जो लेयर्स हैं उनको लर्न करना पड़ता है, उनकी स्पेसिफिकेशंस पता होनी चाहिए. जैसे आपकी पहली लेयर ही यहाँ पे है ट्रोपोस्फेयर लेयर. इसमें आप सोलर रेडिएशन पढ़ोगे, आप पढ़ोगे ट्रोपोपॉज क्या होता है. आपको पता होना चाहिए एक एक टर्म कि वो एग्जैक्टली क्या फॉर्म करते हैं. एक होती है सेंसिबल हीट, एक होती है लेटेंट हीट. सेंसिबल हीट का क्या डिफरेंस है? सेंसिबल हीट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, विच इज ओनली 23%. ठीक है, ये आपकी हो गई 23%. और जो आपकी इसने बताया लेटेंट हीट का परसेंटेज होता है 73%.
आप इसको लिख दो 77%, बिकॉज स्पेसिफिक और सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट में जो प्लस होके आएगा वही आपकी एयर है, वही एक कॉम्पोनेंट है जो आपकी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब आप क्या करेंगे ना आप इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो। ऐसे तो हाइट बढ़ रही है इन अपवर्ड्स डायरेक्शन, एंड ऐसे ही ट्रोपोस्फेयर आ गया, स्ट्रेटोस्फेयर आ गया। आप ट्रोपोस्फेयर पढ़ो, आप स्ट्रेटोस्फेयर देखो, आप मीजो देखो, आप थर्मो देखो। ये आपकी 4 प्रोमिनेंट लेयर्स हैं, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो। इनके बीच में जो बाइफर्केशन आएगी दैट इज ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, मीजोपॉज एंड थर्मोपॉज, विच इज नॉट अ लेयर, इट इज एक्सोपॉज, मतलब आउटसाइड द वर्ल्ड। लाइक एक्सोपॉज गोज आउटसाइड, मतलब लेयर्स के बाहर। तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटो के बीच में आ गया ट्रोपोपॉज, स्ट्रैटो और मीजो के बीच में आ गया स्ट्रैटोपॉज, मीजो और थर्मो के बीच में आ गया मीजोपॉज। सो विद इंक्रीज इन हाइट इन किलोमीटर्स, इवन योर रेंजेस, इवन योर लेयर्स इंक्रीज। इसमें आप ये रहा आपका ट्रोपोपॉज, ट्रोपोस्फेयर। पहले तो ये एक लोएस्ट पोर्शन है, सबसे लोएस्ट लेयर जो ओजोन के पास होती है, विच इज योर ट्रोपोपॉज, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, इसमें इन्वर्जन प्रोसेस होता है, इसमें आपकी एटमॉस्फेयर लाई करती है। 70% आपका एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर में ही लाई करता है। 70% ऑफ योर ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपो हैज 70% ऑफ ए इज योर 70% ऑफ एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट इन योर ट्रोपोस्फेयर गैस। ठीक है, लोअर ट्रोपोस्फेयर, अपर ट्रोपोस्फेयर। The solar radiation heats up the earth surface, which in turns lowers the atmosphere. जितनी सन रेज आएंगी आपके पास ज़्यादा, उतना आपका होगा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लो। जितनी सन रेज ज़्यादा, उतना आपका रिफ्लेक्शन कम। ट्रोपोज का मतलब होता है टर्निंग एंड द फ्रीक्वेंट ओवर टर्निंग। ट्रोपोज का मतलब है सनरेज आई, आपका ये सरफेस है ट्रोपोस्फेयर, सनरेज आई, इस पर रिफ्लेक्ट हुई एंड ऑन द सेम स्पीड इट विल गो बैक। सो दिस इज कॉल्ड ट्रोपो। ट्रोपो इज जितना जल्दी आना उतना जल्दी जाना। दिस इज योर ट्रोपो, एज इन लाइक इन टर्म्स ऑफ लिटरल। ओके, दिस इज ट्रोपो। ट्रोपो के जस्ट बाद ना आप एक और टॉपिक पढ़ोगे विच इज कॉल्ड पोलर ट्रोपोपॉज क्या होता है और स्ट्रैटोपॉज क्या होता है। Stratosphere में the layer above the tropopause up to 50 kilometer is the stratosphere. Initially the 10 kilometers is called as isothermal, जो खुद temperature regulate कर पाती है, that is called as isothermal. Stratosphere is very stable region with very low humidity, और इसमें जो clouds present होते हैं it is your nacreous cloud और mother of pearl clouds. दो टाइप के क्लाउड्स होते हैं, नैक्रस और मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। तो जो स्ट्रैटोस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं आपके मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। ओके, स्ट्रैटोपॉज इट इज द अपर बाउंड्री ऑफ द स्ट्रैटोस्फेयर। स्ट्रैटोपॉज जस्ट अबव स्ट्रैटो, ये स्ट्रैटोस्फेयर है, दिस इज स्ट्रैटोपॉज, दिस कम्स योर मीजोस्फेयर। अब आगे आपका इसमें पता है ना क्या है, 50 किलोमीटर की रेंज है। स्टार्टिंग के 8 से 10 किलोमीटर आपके आइसोथर्मल में काउंट होते हैं। और इन सब के डिटेल्ड नोट, एक तो आपको वीडियो मिल ही रही है, इसके डिटेल्ड नोट्स आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। उसके लिए यू नीड टू टेक्स्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ऑन वॉट एवर हैंडल्स जो भी आप यूज़ करते हो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, उसमें आप कॉन्टैक्ट करो। आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे इन डिटेल। ऐसे ही डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया जाता है जिसमें हम बुक को रेफर करते हैं, हैंड रिटन नोट्स होते हैं और पायलट्स के साथ 1-to-1 कम्युनिकेशन कराते हैं हम लोग। आपको बस एनरोल करना है और अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज बहुत कंपटीशन बढ़ गया है आफ्टर लॉकडाउन। जब से DGCA के रूल्स चेंज हुए हैं, एवरी सेकेंड पर्सन स्टडिंग इन क्लास 10th and 12th who has science or PCM wants to have or clear this exam called CPL. So this was just a demo I gave
जिसमें हमने एक लेयर पढ़ाई, ऐसे ही हम और सारे सब्जेक्ट्स कवर कराएंगे इन द कोर्स. फॉर दैट यू नीड टू विजिट आवर टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जो भी मैंने नीचे हैंडल दिए हैं, जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे आप प्लीज़ उसको इन्फॉर्म, उस पर मैसेज करो, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लो और जितना जल्दी हो सके कोर्स ज्वाइन करो, बिकॉज नोबडी इज़ प्रोवाइडिंग. मैंने यूट्यूब पे इतना सर्च किया, सबसे लेटेस्ट कंटेंट किसी को नहीं मिलेगा. अगर आप मेट्रोलॉजी डालोगे और फिल्टर में डालोगे दिस मंथ और दिस ईयर में फिर भी 1-2 वीडियो मिल जाएंगी. दिस मंथ या दिस वीक में कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज नोबडी इज मेकिंग कॉन्टेंट ऑन दिस. जो एक बार चल गया, जिसने 3-4 लाख रुपए कोचिंग में दे दिए, वो दे दिया. अदरवाइज नोबडी इज बॉदर्ड की और बच्चे भी हैं जिनको हिंदी नहीं आती, जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, उन्हें पढ़ना है, वो कहाँ जाएंगे? यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल हेल्प यू आउट. जितना मुझसे बन पड़ेगा, चाहे मुझे अपने पायलट फ्रेंड्स इन्वॉल्व करने पड़े, चाहे मुझे प्रोफेसर्स बुलाने पड़े, दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू जस्ट नीड टू हैव दिस थिंग इन योर माइंड कि मुझे पायलट बनना है. चाहे आपको लोन लेना पड़े, द बेस्ट लाइफ यू कैन गेट इज बिकम पायलट. थैंक यू सो मच. आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप टू सी यू इन माई कोर्स सून.